So dear students, today we are going to discuss the direct method which is used for ascertaining cash flow from operating activities. Okay, so there are two methods, as we all know. Operating activities are the main source of revenue and expenditure in an enterprise. Okay, operating activities means day-to-day activities. Therefore, the ascertainment of cash flow from operating activities need special attention. Okay, so as per accounting standard 3, an enterprise should report cash flows. Flows means inflows and outflows of cash from operating activity either by using direct method or indirect method. Okay, there are two methods. Direct method क्या है? Direct method whereby major classes of gross cash receipts and gross cash payments are disclosed. That means in the direct method, what we need to disclose, we need to disclose all the cash receipts and all the cash payments. Okay, and in the indirect method is started with our net income. Okay, either it is profit or loss, we have to start with the net income. Okay, then it has to be adjusted with the effects of transaction of a non-cash nature like depreciations, okay, written off of goodwill, intangible assets, any deferrals or accruals of past future operating cash receipts, and items of income and expenses associated with investing or financing cash flows. Okay, as I have already said that the starting point is net profit or loss, बट जो नेट प्रॉफिट और लॉस हम लोग लेंगे वो बिफोर टैक्सेशन होगा. दैट मीन्स टैक्स अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है. ठीक है, तो इसमें ऑपरेटिंग में क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जब हम लोग इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं कैश फ्लोज कैलकुलेट करने के लिए, तो हम लोग लास्ट में फॉर्मेट में दिया हुआ है कि हम लोगों को लास्ट में इनकम टैक्स माइनस करना है. तो अगर पहले से इनकम टैक्स माइनस किया हुआ अगर प्रॉफिट या लॉस लेकर के हम लोग स्टार्ट करेंगे तो फिगर्स मिसलीड करेगा. ठीक है, इसलिए हम लोग को जो प्रॉफिट एंड लॉस लेना है वो क्या लेना है, बिफोर टैक्सेशन वाला लेना है. ठीक है, उसके बाद हम लोगों को उसमें क्या एडजस्ट करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑफ द एंटरप्राइज. यानी कि उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जितना है वो सब हम लोग को एडजस्ट करना है, नॉन कैश आइटम्स एडजस्ट करना है. उसके बाद हम लोगों को कैलकुलेट करना है क्या, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ठीक है, तो ये था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड. अब यहाँ पे Accordingly, cash flow from operating activities can be determined using either the direct method or indirect method. कोई सा भी मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं. The direct method provides information which is useful in estimating future cash flows. तो अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो इससे हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है कि फ्यूचर में हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि कैश फ्लोज किस रेशियो में होगा, या कितना इनफ्लोज होगा, कितना आउटफ्लोज होगा, कौन से एरियाज़ में इनफ्लोज हो रहा है, कौन से प्रोस्पेक्टिव एरियाज़ में हम लोग का आउटफ्लोज हो रहा है. बट सच इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल अंडर इनडायरेक्ट मेथड. बट इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे हम लोग ग्रॉस कैश रिसिप्ट्स एंड ग्रॉस कैश पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं. ठीक है, डायरेक्ट हम लोग इनकम से स्टार्ट करते हैं. However, in practice, indirect method is mostly used by the companies for arriving at the net cash flow from operating activities. But ज़्यादातर companies क्या use करते हैं, indirect method ही use करते हैं. Okay. So now we are going to discuss the differences between direct and indirect method of cash flow statement. ठीक है, तो first differences क्या है कि direct method में cash flow statement from operations is calculated only cash transaction such as cash spent and cash received. यानी कि डायरेक्ट मेथड में जब हम लोग फ्लोज हम लोग एसरटेन करते हैं, कैश फ्लोज एसरटेन करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स लेंगे, कैश स्पेंडिंग्स लेंगे एंड कैश रिसिप्ट्स लेंगे. ठीक है, बट इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करते हैं, बट किसकी बेसिस पे करते हैं, नेट इनकम के बेसिस पे करते हैं. देन नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन आर एडेड बैक. यानी कि जब हम लोग इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो हम लोग नेट इनकम के बेसिस पे करते हैं, और उसके बाद हम लोग नॉन कैश आइटम जैसे कि डेप्रिसिएशन होता है उसको क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं. एंड नॉन कैश इनकम लाइक प्रॉफिट्स गार्नर्ड ऑन स्क्रैप सेल्स आर डिडक्टेड. और अगर उसके जगह पे अगर कोई प्रॉफिट्स वगैरह हुआ है हम लोग को, सेल ऑफ एसेट एंड ऑल, तो उन सब प्रॉफिट्स को हम लोग नॉन कैश इनकम है इसलिए उसको क्या करते हैं, हम लोग डिडक्ट कर देते हैं. ऑल्सो देयर इज़ अ नेट एडजस्टमेंट डन बिटवीन करंट एसेट एंड लाइबिलिटीज़ टू रीच द फाइनल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन. इसके बाद हम लोग करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ का हम लोग एडजस्टमेंट्स करते हैं, नेट एडजस्टमेंट करते हैं उन दोनों के डिफरेंसेस का. तो यहाँ पे क्या चीज़ का डिफरेंसेस होता है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस का हम लोग बेसिकली एडजस्टमेंट करते हैं. ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी. तो वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस आ रहा है उसका एडजस्टमेंट करते हैं, उसके बाद हम लोग को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मिलता है. ठीक है, सेकेंड डिफरेंसेस है द डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड इज रिकॉन्सिलिएशन. In the direct method, reconciliation is used to separate various cash flows from others, while in indirect method, conversion of net income is done in the form of cash flow.
अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक बनाना पड़ता है हम लोग को, अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम लोग को फिर वही चीज़ करना है जो हम लोग इनडायरेक्ट में करते हैं, ठीक है। नेट इनकम दिखा करके हम लोग को फिर सारा कैटेगराइज करके वर्किंग कैपिटल चेंजेस वगैरह एडजस्टमेंट सारा हम लोग को वहाँ पे शो करना होता है, ठीक है। फिर है नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आर इग्नोर्ड इन डायरेक्ट मेथड वाइल दे आर टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द इनडायरेक्ट मेथड। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नॉन एक्सपेंसेस, जैसे कि इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देते हैं, ठीक है, अमोर्टाइजेशन होगा तो ऐड बैक करेंगे, बट ये सारे जो आइटम्स होते हैं, ये सारे आइटम्स डायरेक्ट मेथड में क्या होते हैं, इग्नोर हो जाते हैं, ठीक है। No preparation are required for direct method, while the indirect method involves a lot of preparation for conversion of income. यहाँ पे अगर हम लोग को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है तो डायरेक्ट मेथड के लिए हम लोग को कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बट इनडायरेक्ट मेथड से अगर करना है तो हम लोग को सारे एडजस्टमेंट्स को पहले ध्यान में रखना होगा पूरे क्वेश्चन के बाद, उसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बिगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद है कि एक्यूरेसी इन डायरेक्ट मेथड इज़ हाई, यानी कि डायरेक्ट मेथड का एक्यूरेसी हाई होता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं होता है। बट अगर हम लोग इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो इनडायरेक्ट मेथड की एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा एडजस्टमेंट्स हम लोग को करना पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में हम लोग को डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम लोगों का एक स्टेटमेंट तो बनेगा जिसमें हम लोग को ग्रॉस कैश रिसीप्ट्स एंड ग्रॉस कैश पेमेंट्स को शो करना है, बट उसके बाद हम लोग को एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट भी बनाना होता है जिसमें हम लोग को वही फॉर्मेट फिर फॉलो करना होता है जो हम लोग इनडायरेक्ट मेथड के लिए करते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि डायरेक्ट मेथड में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं उसमें जो हम लोग को टाइम कंज्यूम होता है वो टाइम ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। Companies prefer using indirect methods since they are preparing a balance sheet and income statement based on accrual accounting and the indirect method uses accrual accounting. अब कंपनीज क्या प्रेफर करते हैं, ज़्यादातर कंपनीज प्रेफर करते हैं इनडायरेक्ट मेथड को, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड क्या यूज़ करता है, एक्रूअल अकाउंटिंग मेथड यूज़ करता है। एक्रूअल अकाउंटिंग मेथड क्या है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन ऑकर हो रहा है, ठीक है, तो जिस टाइम पे वो ट्रांजेक्शन ऑकर हो रहा है उस रेट में ही हम लोग को उसको एंट्री करना है, रैदर कि उसका कब पेमेंट हो रहा है या वो एक्चुअली कब हम लोग को वो पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है। यानी कि रिसिप्ट और पेमेंट का डेट पे हम लोग को ट्रांजैक्शन को एंट्री नहीं करना है, हम लोग को उस डेट का ट्रांजैक्शन को एंट्री करना है जिस डेट पे वो एक्चुअली ऑकर हो रहा है, ठीक है, उस डेट के अमाउंट पे हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं। इफ़ कंपनी वेयर टू प्रिपेयर अ डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो दे हैव टू लुक एट एवरी ट्रांजेक्शन एज अ कैश आउटफ्लो और इनफ्लो। अगर कंपनी को डायरेक्ट मेथड यूज़ करना होगा तो उन लोग को हर एक इवेंट को किस नज़रिए से देखना पड़ेगा कि कैश या तो आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, या कैश आउटफ्लो हो रहा है, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। सो लेट अस सॉल्व अ प्रॉब्लम। फर्स्ट वी गो थ्रू अ क्वेश्चन, ओके। ये क्वेश्चन 2012 में आया है, ठीक है, असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल के 12th के फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, एसर्टेन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अंडर डायरेक्ट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू द अकाउंटिंग ईयर 2010 एंड 11। ये 5 मार्क्स के लिए आया था, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट आइटम क्या दिया है, टोटल सेल्स दिया 44,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल सेल्स रुपीज़ 44,000 दिया है, बट यहाँ पे हम लोग को और भी इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि कैश सेल्स हुआ है 4,000 का और क्रेडिट सेल हुआ है 40,000 का। तो टू बी वेरी स्पेसिफिक कि हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कैश का ट्रांजैक्शन होगा तभी हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि क्रेडिट वाला पार्ट हम लोग का रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ हम लोग को क्या रिकॉर्ड करना है, कैश वाला पार्ट रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो अगर कैश सेल्स है तो कैश सेल्स तो हम लोग का इंक्लूड होगा, तो कैश सेल्स क्या है, रिसिप्ट है, कैश इनफ्लो है। तो ये अमाउंट जब हम लोग एंट्री करेंगे स्टेटमेंट में लिखेंगे तो पॉजिटिव में लिखेंगे, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स रुपीज़ 35,000, तो यहाँ पे कैश रिसीव हो रहा है, यानी कि ये भी रिसिप्ट है, ये भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल्स मतलब बिल्स रिसीवेबल्स, ठीक है। तो अब बिल्स रिसीवेबल्स जो रिसीव होना बाकी है, ये तो बैलेंस शीट का पार्ट है, तो यहाँ पे तो कैश का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स ये एंट्री नहीं आएगा, ठीक है। कैश पेड टू सप्लायर्स, अब सप्लायर्स को हम लोगों ने पेमेंट किया कितना, 42,000 रुपीज़, तो पेमेंट आएगा, बट ये नेगेटिव है, पैसा जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो इसको हम लोग को ब्रैकेट में दिखाना है, ठीक है। कैश पेड टू एम्प्लॉयज़ को हम लोगों ने कैश पे किया है, ये भी आएगा, ठीक है। फर्नीचर परचेज फ्रॉम मेसर्स डेकोरेटर्स ऑन क्रेडिट ₹9,000, तो अब हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया है डेकोरेटर्स से, कितना का फर्नीचर्स परचेज किया, 9,000 का फर्नीचर्स परचेज किया, बट फर्नीचर क्रेडिट में परचेज किया, तो क्रेडिट का ट्रांजैक्शन यहाँ एंट्री नहीं होगा। इनकम टैक्स पेड 3,000, तो इनकम टैक्स क्या होता है हम लोग का, माइनस होता है, ठीक है, टैक्स को माइनस करना है। डोनेशंस पेड, पेमेंट हुआ है, ये भी इंक्लूड होगा। ऑफिस एक्सपेंसेस टोटल ₹6,000,
पेड 3000, यानी कि टोटल ऑफिस एक्सपेंसेस तो था 6000, बट अभी तक पेमेंट कितना हुआ है 3000, तो हम लोग कितना एंट्री करेंगे, ओनली 3000, ठीक है। तो हम लोग को फॉर्मेट बनाना है, तो पहले ऐसे फॉर्मेट बना लेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करना है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम, ठीक है। सिर्फ 2 ही कॉलम बनेगा, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कैश सेल्स से। कैश सेल्स कितने का था, 4000। क्यों 4000, क्योंकि जो 40000 है वो क्रेडिट सेल है, ओके। नेक्स्ट इज आवर कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। तो कस्टमर से कितना पैसा रिसीव किया, 35000, ठीक है। क्लोजिंग अकाउंट्स रिसीवेबल तो नहीं आएगा। नेक्स्ट इज कैश पेड टू सप्लायर्स, ठीक है, 42000। तो अब पेमेंट हुआ है यहाँ पे 42000, तो हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। कैश पेड टू एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ को हम लोगों ने पेमेंट किया है 7000, ये भी ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। फर्नीचर परचेज नहीं आएगा, इनकम टैक्स लास्ट में आएगा। डोनेशन पेड कितना, 1000, ओके। देन ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस 3000 पेमेंट हुआ है, टोटल 6000 था बट उसमें से 3000 पेमेंट हुआ, तो 3000, ठीक है। अब इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। टोटल करो तो कितना हो गया, 39,000, 7, 8, 9, 10, 11, 42, 53,000, 53 माइनस 39, 53 माइनस 39, 14,000, ठीक है। ये 14,000 आया बट नेगेटिव में आया, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वाला पोर्शन ज़्यादा था, ठीक है। अब ये 14,000 से और हम लोग को क्या एडजस्ट करना है, इनकम टैक्स लेस इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स हम लोग को अलग से शो करना होता है। तो इनकम टैक्स कितना पे हुआ था, 3000, तो 3000 इसमें से और माइनस होगा, यानी कि ये टोटल माइनस कितना चला जाएगा, 17,000, ठीक है। तो अब ये क्या निकला हम लोग का, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये था हम लोग का सॉल्यूशन, ओके।